جائزہ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ بہت ہی پراسرار اور دلچسپ ہے۔ ہم ایک ایسی شخصیت کی بات کرنے والے ہیں جن کا نام شاید سنا ہو، ہرمیز ٹرسمیگسٹس۔ یہ کون تھے اور ان کی تعلیمات آج بھی کیوں اہم ہیں؟ آئیے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ جی، ہمارے ذرائع ایک بہت پرانی تحریر سے ہیں جو ہے تمام ادوار کی خفیہ تعلیمات کو جمع کرتی ہے، اور ہمارا مقصد اس میں سے اس شخصیت کے بارے میں اہم نکات نکالنا ہے۔ اور یہ شخصیت واقعی میں تاریخ اور افسانے کا ایک ناقابل یقینی امتزاج ہے۔ ان کا نام ہی ایک پہیلی ہے۔ ٹرسمیگسٹس کا مطلب ہے 3 بار عظیم۔ 3 بار عظیم؟ جی، لیکن وہ کون تھے؟ مصری انہیں تھوت کہتے تھے، علم اور تحریر کا دیوتا۔ یونانی انہیں ہرمیس کہتے تھے، خداؤں کا پیغام رساں۔ اور رومی مرکری۔ اور رومی انہیں مرکری کہتے تھے۔ یہاں تک کہ کچھ روایت انہیں بائبل کی شخصیت انوک سے بھی جوڑتی ہیں۔ یہ بات مجھے ہمیشہ بہت دلچسپ لگتی ہے۔ ایک طرف مصری دیوتا تھوت ہے جو سنجیدہ، عالم اور خداؤں کے کاتب ہے، صحیح، اور دوسری طرف یونانی ہرمنس جو نہ صرف پیغام رساں ہیں بلکہ تاجروں، مسافروں اور یہاں تک کہ چوروں کے بھی دیوتا ہیں۔ بالکل۔ یہ 2 بالکل مختلف کردار لگتے ہیں۔ ان کو ایک شخصیت میں ضم کرنے کی وجہ کیا تھی؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اس کی جڑیں قدیم دنیا کے ثقافتی سنگم میں ہیں، خاص طور پر اسکندریہ جیسے شہروں میں۔ اچھا۔ جہاں مصری، یونانی اور رومی تہذیبیں آپس میں مل رہی تھیں۔ جی۔ انہوں نے دیوتاؤں میں مشترکہ خصوصیات تلاش کرنا شروع کر دی۔ جیسے تھوت اور ہرمیس دونوں ہی علم، ابلاغ اور الہام کے محافظ تھے۔ اچھا۔ تھوت نے انسانوں کو تحریر سکھائی، ہرمیس نے زبان اور تشریح سکھائی۔ تو لوگوں نے سوچا یہ ایک ہی الہی اصول کے 2 مختلف نام ہیں۔ بالکل، اور اس طرح تھوت ہرمیس کی مشترکہ شخصیت وجود میں آئی۔ تو یہ ایک قسم کی روحانی گلوبلائزیشن تھی۔ ہاں، ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ اور انہیں خداؤں کا پیغام رسا کہنے کے پیچھے ایک فلکیاتی تعلق بھی تھا، ہے نا؟ بالکل۔ سیارے عطارد، جسے رومی مرکری اور یونانی ہرمیس کہتے تھے، وہ سورج کے سب سے قریب گردش کرتا ہے۔ اچھا۔ اس لیے اسے سورج کا یعنی مرکزی الہی روشنی کا پیغام رسا سمجھا جاتا تھا۔ یہ خیال کہ ہرمیس خدا اور انسان کے درمیان ایک پل ہے، ان کی پوری تعلیمات کا مرکز ہے۔ یہ صرف ایک نام نہیں، یہ ایک کردار ہے، ایک مشن ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کردار اور مشن کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ان کی تعلیمات کا مرکز ایک بہت ہی طاقتور اور پراسرار تجربے سے آتا ہے۔ جی۔ متن کے مطابق ہرمیز ایک ویران چٹانی جگہ پر مراقبہ کر رہے تھے جب ان کے سامنے ایک بہت بڑا شاندار ڈریگن ظاہر ہوا۔ یہ تو کسی مہاکاوی داستان کا آغاز لگتا ہے۔ اور یہ ہے بھی، لیکن یہ کوئی عام ڈریگن نہیں ہے جو خزانے کی حفاظت کرتا ہو۔ اچھا۔ متن کہتا ہے کہ یہ پویو مائنڈز ہے، جسے کائنات کا ذہن یا عظیم چرواہا بھی کہا جاتا ہے۔ کائنات کا ذہن؟ جی۔ تو یہ کوئی جسمانی مخلوق نہیں، بلکہ خود الہی شعور کے ساتھ ایک علامتی ملاقات ہے۔ یہ ہرمیس کے باطن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دھماکہ تھا۔ اور پوئمانڈرس ان سے پوچھتا ہے تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ جی، اور ہرمیس کی درخواست بہت سادہ لیکن گہری ہے۔ میں چیزوں کی فطرت کو سمجھنا اور خدا کو جاننا چاہتا ہوں۔ واہ، ذرا اس منظر کو تصور کریں، ایک طرف خالص الہی روشنی اور دوسری طرف مادی دنیا کی گھومتی ہوئی تاریکی۔ بالکل۔ یہ تو سیدھا سیدھا اچھائی اور برائی یا روح اور مادے کی تمثیل ہے۔ صحیح۔ اور پھر ان دونوں کے درمیان سے ایک آواز یا کلام نکلتا ہے۔ مجھے یہ جاننا ہے کہ یہ مقدس کلام کیا ہے؟ یہ تخلیق کی ہی کہانی ہے، لیکن ایک منفرد ہرمیٹک نقطہ نظر سے۔ اس میں 2 مرکزی قوتیں ہیں۔ پہلا ہے الہی ذہن، یعنی خالص شعور، جسے روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر اس ذہن کا ایک اظہار ہے جسے کلام یا لوگوس کہا جاتا ہے، یعنی وہ تخلیقی حکم جس سے ہر چیز وجود میں آتی ہے۔ یہ بالکل کن کہنے جیسا ہے۔ بالکل۔ متن کہتا ہے کہ یہ کلام اس ذہن کا بیٹا ہے، کیونکہ یہ اسی سے پیدا ہوتا ہے اور اسی کی مرضی کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، تو ایک الہی ذہن اور اس کا تخلیقی کلام، یہ تو کائنات کی شروعات ہوئی، لیکن یہ دنیا، یہ سیارے، یہ سب کیسے بنے؟ یہیں پر کہانی اور پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ متن کے مطابق الہی ذہن اور کلام مل کر ایک دوسرا ذہن بناتے ہیں۔ ایک دوسرا ذہن؟ جی،
इस दूसरे जहन को डेमियर्ज या कारीगर कहा जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक मास्टर आर्किटेक्ट जो कि इलाही जहन है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर यानी डेमियर्ज को मुकर्रर करता है। तो ये डेमियर्ज कोई बुरी हस्ती नहीं है जैसा कि कुछ दूसरी रवायात में समझा जाता है, ये सिर्फ एक कायनाती मैनेजर है। इस मतन में बिल्कुल उसका काम मादी कायनात को तरतीब देना है। और वो ये कैसे करता है? वो 7 दायरे या गवर्नर्स बनाता है जो कदीम इल्म के मुताबिक 7 सियारे हैं जो हमारी तकदीर और मादी दुनिया पर हुक्मरानी करते हैं। हाँ, तो ये कदीम इल्म नुजूम का बुनियादी ख्याल है। जी हाँ, कि चांद, सूरज और दीगर सियारों की चालें हमारी जिंदगियों पर गहरा असर डालती हैं। वो फितरत के कानून और किस्मत के पहिए को चलाते हैं। अच्छा, तो ये एक मुकम्मल कायनाती निज़ाम है। इलाही जहन, एक कारीगर खुदा और सैयारे जो किस्मत को कंट्रोल करते हैं। ये सब बहुत बड़ा और गैर ज़ाती लगता है। इस अजीम मशीनरी में एक फ़र्द, एक इंसान की क्या जगह है? यही सबसे अहम सवाल है। मतन कहता है कि सबसे आला बाप जहन जो रोशनी और जिंदगी है ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया। अपनी सूरत पर? जी, उसने इंसान को महज एक मखलूक के तौर पर नहीं बल्कि अपने बच्चे के तौर पर बनाया और उससे मोहब्बत की। उसने इंसान को अपनी तमाम तख्लीकात पर इख्तियार दिया। ये पैदाइश की कहानी की तरह लगता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मोड़ है। और वो मोड़ क्या है? वो मोड़ इंसान के ज़वाल में है। इंसान जिसे तमाम तख्लीक पर इख्तियार दिया गया था, 7 सैयारों के दायरों से गुजरा और उनकी फितरत का एक हिस्सा जज्ब कर लिया। सही। फिर जब उसने निचली मादी दुनिया यानी फितरत की तरफ देखा तो उसे पानी में अपना ही अक्स नजर आया। और वो अपने अक्स, अपने साए से मोहब्बत कर बैठा। ये तो आजकल की सोशल मीडिया और सेल्फी कल्चर की बेहतरीन तारीफ लगती है। बिल्कुल। हम अपनी डिजिटल शबीहा से मोहब्बत करते हैं और कभी-कभी इसमें इतना खो जाते हैं कि असली हमको भूल जाते हैं। हाँ, ये हजारों साल पुरानी बात आज भी कितनी मुताल्लिका है। ये तो बिल्कुल यूनानी द्युमाला के नार्सिसिस की कहानी है। बिल्कुल वही ख्याल है जो पानी में अपना अक्स देखकर उस पर आशिक हो गया और आखिरकार उसी को देखते देखते डूब गया। तो ये एक आफाकी इंसानी कमजोरी है। जी, मतन के मुताबिक इंसान ने अपने अक्स के साथ एक होने की ख्वाहिश की और फितरत के साथ जम हो गया और इस तरह वो एक मादी जिस्म में कैद हो गया। बिल्कुल। इस अमल ने इंसान को दोहरी फितरत का हामिल बना दिया। इसके अंदर एक लाफानी इलाही रूह है, लेकिन वो एक फानी मादी जिस्म में कैद है जो इन 7 सैयारों या गवर्नर्स की तकदीर के ताबे है। जी हाँ। तो इसका मतलब है कि यहाँ गुनाह खुदा की नाफरमानी नहीं जैसा कि अब्राहीमी मज़ाहिब में है, बल्कि अपनी ही जिस्मानी शक्ल से ये लगाव और मोहब्बत है। बिल्कुल, यही हर्मेटिक फलसफे का बुनियादी फर्क है। मतन साफ कहता है जो शख्स लगाव की गलती से अपने जिस्म से मोहब्बत करता है वो तारीकी में भटकता रहता है, हवास के रहमो करम पर और मौत का तजर्बा करता है। तो गुनाह जहालत है, अपनी असल इलाही फितरत को भूल जाना। सही। एक मिनट, ये बहुत सख्त बात है। क्या ये मतन वाकई ये कह रहा है कि अगर कोई शख्स रूहानी इल्म हासिल नहीं करता तो उसकी जिंदगी बेमानी है और वो मौत का तजर्बा करता है? ये थोड़ा मतलब एलिटिस्ट नहीं लगता कि सिर्फ चंद रोशन ख्याल लोगों को ही हकीकी जिंदगी मिलती है? ये एक बहुत अहम नुक्ता है। पहली नजर में ये ऐसा ही लगता है, लेकिन इसकी गहराई कुछ और है। मौत से मुराद जिस्मानी मौत नहीं बल्कि रूहानी मौत है। अच्छा। जहालत की हालत में जीना, ये यकीन करना कि हम सिर्फ ये जिस्म और इसकी ख्वाहिशात हैं, यही असल मौत है। मतन के मुताबिक जाहिल शख्स सिर्फ जिस्म को जानता है, इसलिए वो सिर्फ जिस्म की मौत पर यकीन रखता है और अपनी लाफानी रूह को पहचान नहीं पाता। और उसके बरक्स? इसके बरक्स इल्म या ग्नोसिस लाफानियत का रास्ता है। ये समझना कि जिस्म सिर्फ रूह का मकबरा है, आज़ादी की तरफ पहला कदम है। तो ये किसी खास तबके के लिए नहीं बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो सच्चाई की तलाश में है। जी बिल्कुल। तो इस सारी बसीरत का मकसद क्या था? पोइमांड्रस ने हिरमीस को ये सब कुछ दिखाया। क्या ये सिर्फ एक निजी इल्हाम था या इसके पीछे कोई बड़ा मकसद था? इसके पीछे एक बहुत बड़ा मिशन था। पोइमांड्रस हिरमीस से कहता है, अब तुम ये सब जान गए हो तो जाओ और उन लोगों के लिए एक रहनुमा बनो जो तारीकी में भटक रहे हैं, ताकि हर इंसान तुम्हारे जरिए निजात पा सके। जी,
उसे जहन के असरार कायम करने का हुक्म दिया जाता है। वो पहला रोशन ख्याल बन जाता है जिसे दूसरों को रोशन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और यहाँ पर उनकी मुख्तलिफ शनाख्तें एक साथ मिलती हैं ना? बिल्कुल। अब वो थॉथ के तौर पर काम करता है जो इस इलाही इल्म को लिखता और महफूज करता है। और वो हर्मीज या मरकरी के तौर पर काम करता है जो इस पैगाम को इंसानियत तक पहुंचाता है। वो एक उस्ताद, एक रहनुमा और खुदा और इंसान के दरमियान एक पुल बन जाता है। बिल्कुल, इसका पूरा वजूद उस मिशन के लिए वक्फ हो जाता है। और ये मिशन इस दुआ में भी झलकता है जो हरमेस इस तजर्बे के आखिर में करता है। वो दुआ क्या है? वो एक बहुत ही खूबसूरत हम्द है। ये उसकी जिंदगी को उस अजीम रोशनी की खिदमत के लिए वक्फ करने का ऐलान है। वो बार बार खुदा की तारीफ करता है कि वो तमाम चीज़ों का मंबा है जो अक्ल के जरिए जाना जा सकता है और फितरत में जाहिर होता है। और इसकी एक सत्र है जो खास तौर पर हर्मेटिक फलसफे का खुलासा है। जी, तू मुक़द्दस है जिसकी पूरी फितरत शबीहा है, यानी पूरी कायनात खुदा का अक्स है। बिल्कुल, पत्थरों, पौधों, सितारों, हर चीज़ में इलाही हकीकत की झलक मौजूद है। ये दुआ सिर्फ शुक्रगुजारी नहीं बल्कि एक गहरे इदराक का जश्न है। तो जब हम इन तमाम बातों को एक साथ देखते हैं तो हर्मीस ट्रिसमेगिस्ट सिर्फ एक तारीखी या अफसानवी शख्सियत नहीं रहते, नहीं, बल्कि वो रोशन ख्याल उस्ताद का एक नमूना, एक आर्किटाइप बन जाते हैं। जी हाँ, उनकी ये बसीरत सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं बल्कि कायनात और इसमें इंसानी रूह के सफ़र का एक अलामती नक्शा है। बिल्कुल। और यहाँ सबसे बड़ा नुक्ता ये है कि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये एक नफ्सियाती नक्शा है। नफ्सियाती नक्शा। जी, ये कह रहा है कि हम सब एक तरह से कैद हैं, अपनी ख्वाहिशात, अपनी शनाख्त, अपनी मादी चीज़ों से मोहब्बत की वजह से। सही। और इस तालीम के मुताबिक आज़ादी का वाहिद रास्ता जानना है, ये समझना कि हम इस जिस्म और इसकी ख्वाहिशात से कहीं ज़्यादा हैं। ये हज़ारों साल पुराना खुद शनासी यानी सेल्फ रियलाइजेशन का फॉर्मूला है। बिल्कुल, ये तालीमात बताती हैं कि कायनात खुद एक मुक़द्दस मतन है जिसे पढ़ा और समझा जाना है। मतन का इख्तिताम एक बहुत ही ताकतवर जुमले पर होता है कि इस बसीरत को सिर्फ वही समझ सकते हैं जिन्हें हकीकी जहन की मौजूदगी में बुलंद किया गया हो। जी, ये हमें गौर व फिक्र के लिए एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर जैसा कि मतन तजवीज़ करता है हमारे जिस्म महज मकबरे हैं और इनसे हमारा लगाव तारीकी में भटकने की हालत है, तो इस तरह जीना कैसा होगा जैसे हम पहले लाफानी रूहें हैं और बाद में जिस्मानी वजूद? बहुत गहरा सवाल है। अगर कोई शख्स इस नुक्ते नज़र को वाकई अपना ले तो उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कौन सी एक चीज़ बदल सकती है?